Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying class 8 maths chapter 8 comparing quantities. In our previous video we completed exercise 8.2. Today we will be learning a new topic, a very useful and commonly used topic, and it is compound interest. Let us start by building one story. Let us suppose that you are in some urgent need of rupees 1000 for say 1 year, and you want to borrow this 1000 rupees from this person. Now the question arises that why should this person lend you 1000 rupees, and that too for 1 year? After all, nobody wants to lose his money, and he will be losing his money in giving you. Now if you offer him some extra money in addition to the amount that you are borrowing, then he may lend you rupees 1000 for a period of 1 year. And now what will happen after 1 year? After 1 year, you will have to return him back not only this rupees 1000 that you had borrowed, plus in addition to this you will be returning some extra amount, say rupees 200, and now you will be giving in all rupees 1200 to this person. And now this person will also be happy because he earned this extra money from you, and you will also be happy because you got the money in the time of your need. So both will be happy. Now this extra money, this is called the interest. Similarly, you must have seen that when we deposit some amount in a bank or say a post office, then these institutions also return us some extra money along with the amount that we have deposited. This extra money is known as interest. Interest is the extra money paid by institutions like banks or post offices on money deposited or kept with them. Interest is also paid by people when they borrow money. So I hope the concept of interest is clear to you. Now let us focus on some of the basic terms involved in the calculation of interest. First one is principal amount. The amount of money initially borrowed from the lender. जो मनी हम बोरो कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. तो अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ? रुपीज 1000 जो बिगिनिंग में बोरो किया गया था. ठीक है. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट अ लेंडर चार्जेस अ बोरोअर and is a percentage of the principal. Actually this rate is nothing but the interest, that extra money itself, but it is out of 100 and so it is a percentage of the principal amount that we are borrowing. उसका एक percentage होता है ये rate जिसके basis पे हम extra money pay करते हैं अगर हम borrow कर रहे हैं या फिर हम extra money लेते हैं अगर हम lend कर रहे हैं. Then time, the duration for which the principal amount is lent. कितने समय के लिए बोरो किया जा रहा है या दिया जा रहा है, बोरोअर द्वारा लिया जा रहा है और लेंडर के द्वारा दिया जा रहा है. तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को हम टाइम बोल रहे हैं और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. रेट को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं. ये एक कॉमन प्रैक्टिस है. देन द अमाउंट, द फाइनल अमाउंट, इट इज गिवन एज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. जितने रुपए हमने बोरो किए थे वो तो लौटाने ही है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी तो लौटाना है. तो दोनों मिलाकर हो गया अमाउंट. तो अभी हमने जो डिस्कस किया इसमें ये जो बोरो किया था ओरिजिनल अमाउंट, ये तो हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट. और अगर हम रेट की बात करें तो ये कितना परसेंट है आप देखेंगे. द रेट हियर इज 20%. 20% ऑफ 1000 इज रुपीज 200. Then this is the final amount and it is denoted by capital A, and this is nothing but principal plus the interest. This is giving us the amount. जितने रुपए उधार लिए थे वो तो लौटा ही रहे हैं, साथ ही साथ इंटरेस्ट के फॉर्म में हम एक्स्ट्रा मनी लौटा रहे हैं और टोटल जो हम लास्ट में जो लौटा रहे हैं वो हो गया हमारा अमाउंट. तो ये हैं कुछ बेसिक टर्म्स एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. Now we proceed towards the concept of simple interest. When money is borrowed on simple interest, then the interest is calculated
uniformly on the original price throughout the loan period. And this is the formula for simple interest. यहाँ पर आप देखिए, पहले इस फॉर्मूले पे आए, हम समझते हैं कि हमने बोरो किए थे 1000 रुपीज़ और फिर हम 20% रेट पर और इंटरेस्ट कितना दे रहे थे, वी वर गिविंग 20% ऑफ दिस प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 1000 and if you calculate it, it will be 20 upon 100 into 1000 and this will give you rupees 200. This is the interest for one single year और suppose हम 3 years के लिए borrow कर रहे हैं यही amount, तो interest after 3 years ये क्या हो जाएगा, it will be 200 into 3 कर देंगे हम, ये तो हुआ 1 single year का इंटरेस्ट और 3 years के लिए क्या हो जाएगा 200 into 3, दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 600. तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज. और अब आप देखिए हमें ये वैल्यू मिल कैसे रही है, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस प्रिंसिपल अमाउंट, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस टाइम एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव दिस 100. हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम टाइम से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है जिसे हम कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट. और यहीं से आप देखिए दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम अपॉन 100. यहीं से हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम क्यों कह रहे हैं कि जब हमने ये 1000 रुपीज़ बोरो किए फॉर द टाइम 3 years, then for each year the principal amount will be rupees 1000. फर्स्ट ईयर का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा 1000 रुपीज़. जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 1000 रुपीज़. और जब हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 1000 रुपीज़. तो कितने भी टाइम ड्यूरेशन हो, एवरी टाइम द प्रिंसिपल अमाउंट विल रिमेन द सेम दैट ओरिजिनल वन. And this is being said here, when money is borrowed on simple interest, then the interest is calculated uniformly over the original principal. जो starting में principal था उसी पर हम successive years में interest calculate करते हैं in the case of simple interest throughout the loan period. यहाँ पर हमने example लिया 3 years का, 5 years के लिए लें या 6 years के लिए लें, every time for each year the principal amount will remain the same, the one which was in the beginning of the transaction. Okay, so this is the simple interest and this is its formula. How we are getting it, I hope it is clear from here. Now let us do one example based on simple interest. This is an example from your book. A sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. यहाँ पर देखिए आप कितना अमाउंट बोरो हो रहा है 10,000 रुपीज़. तो जितना अमाउंट बोरो हो रहा है ये तो क्या हो गया प्रिंसिपल. सो वी राइट प्रिंसिपल P, it is rupees 10,000. Then it has been given the rate of interest is 15%. इसका मतलब अगर हम 100 रुपीज़ उधार लें तो 15 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने होंगे 100 रुपीज़ के साथ साथ. रेट का मतलब ये हुआ, तो ये तो हुआ आउट ऑफ 100 और एक्चुअली हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होगा वो अभी हमें निकालना है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. नाउ व्हाट डज दिस मीन, पर एनम. एनम मीन्स पर ईयर, पूरे एक साल के लिए जो रेट है वो है 15%. देन द टाइम ड्यूरेशन इट इज 2 years. Now we have to find what, first simple interest find करना है और second हमें amount भी find out करना है कि after 2 years हमें कितना amount वापस देना होगा. Okay, I hope the question is clear. First we will find the simple interest and for this let us write the formula. It's principal into rate into time upon 100. Let me make some space. It will be equal to
10,000 into the rate which is 15 into the time which is 2 upon 100. Cancel these two zeros. Here we have 15 2s are 30 and into 100 it will be 3,000 rupees. This is the simple interest, and now we have to find the amount to be paid at the end of 2 years. How do we find the amount? It is given as principal plus the simple interest. जितने रुपए उधार लिए थे वो तो लौटाने ही है, साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में एक्स्ट्रा मनी भी लौटाना है. So this will be equal to rupees 10,000 which is the principal amount plus rupees 3,000. ये इंटरेस्ट भी हमें लौटाना है. So in all we will be returning an amount of rupees 13,000. Okay, so I hope the concept of simple interest is clear to you. But the fact is that usually simple interest is not in common practice. The banks, the post offices, they calculate the interest which is known as compound interest. Not the simple interest but compound interest. And what is this? The interest accrued during the first unit of time is added to the original principal and the amount so obtained is taken as the principal for the second unit of time. Let us understand what has been said here. First we understand with one example and then we will return back to it. Suppose we borrowed 1,000 rupees for say 3 years. Then for the first year the simple interest it was 1,000 into 20 into 1. We are taking the same case. The rate is 20%, the first example that we took. Now upon 100, this will be equal to rupees 200. ये हो गया फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट. अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे होते तो सेकेंड ईयर के लिए भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहता? यही 1,000 रुपीज़ रहता जो अभी है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो ये इंटरेस्ट निकला है फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के लिए ये मर्ज हो जाता है प्रिंसिपल में और हमें नया प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है सेकेंड ईयर के लिए. आप देखिए फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा? इट विल बी 1,000 प्लस 200. ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. और ये जो फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. तो जब अब हम सेकेंड ईयर पर आए तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे उस केस में प्रिंसिपल हम अब क्या लेंगे? 1,200 रुपीज़. और फिर रेट तो वही रहेगा 20% और सेकेंड ईयर ड्यूरेशन तो 1 ईयर ही रहेगा. सो इंटू 1 अपॉन 100. अब यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए टाइम 2 नहीं लिखना है. सेकेंड ईयर अपने आप में तो एक ही साल है ना. जैसे अभी चल रहा है 2022, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 22 ईयर्स हो गए. इसमें साल तो एक ही है, वही 12 मंथ्स हैं. तो इसी तरह से सेकेंड ईयर भी अपने आप में ड्यूरेशन तो 1 ईयर ही है, तो टाइम हम ले रहे हैं 1 ईयर फॉर द सेकेंड ईयर ऑल्सो. तो अब आप देखिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या ले रहे हैं? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था. यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1,000 नहीं है जो पहला ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट था. सो इट विल बी नाउ कैंसिल दीज टू जीरोस. 12 इंटू 2 24 एंड 1 0. तो अब हमारा नया इंटरेस्ट क्या हो गया? 240. जबकि पहले केस में हम क्या ले रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब हर साल ही प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1,000 था तो हर साल ही आपको कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 200 रुपीज़ का. लेकिन अब आप देखो इंटरेस्ट भी बढ़ गया है और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ गया है. तो फर्स्ट ईयर के केस में जो अमाउंट निकलता है एंड में वही अमाउंट सेकेंड ईयर का आपका बन जाता है प्रिंसिपल अमाउंट. समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर हम थर्ड ईयर की भी बात करें, सपोज वी टॉक अबाउट द थर्ड ईयर ऑल्सो. वेयर टू राइट? लेट मी राइट इट हियर. थर्ड ईयर दिस टाइम. तो जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है वो कितना आ रहा है? देखिए 1,200 प्लस 240. ये हो गया प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट. इट विल बी 40 हियर एंड 4 हियर, 1,440. तो अब जब हम थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो अब हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेंगे? ये वाला 1,440 और रेट वही है हमारा 20 और टाइम वही हो जाएगा 1 ईयर
अपॉन 100, क्योंकि थर्ड ईयर भी ड्यूरेशन तो 1 ईयर ही हुई ना. सो अब आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा. सो सी हियर, जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट था ये वही थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है. बात आ रही है समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से, ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए. सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है. जो स्टार्टिंग वाला था उससे तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट. फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट ईच सक्सेसिव ईयर. तो फर्स्ट ईयर का जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उससे निकलेगा इंटरेस्ट, फिर हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे. ये देखिए आप, तो अब जो अमाउंट आया ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर जब हम दोबारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे और उससे सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट निकालेंगे, ये हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल. तो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है. बात समझ में आ रही है? दोनों में आप कंपेयर कर पा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में. और यही बात यहाँ कही गई है कि द इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड मतलब जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल. देखिए, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में, यूनिट ऑफ टाइम मतलब टाइम कुछ भी ले सकते हैं हम, 1 ईयर 1 मंथ, तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम जो भी रहेगी उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ये 200 रुपीज़, ये ऐड हो जाता है ओरिजिनल प्रिंसिपल में. देखिए ये ऐड हो गया 1000 के साथ, और तब जो नया प्रिंसिपल बनता है वो इन दोनों का सम है सेकेंड ईयर के लिए. इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड. ये देखिए, ये जो अमाउंट हमें मिला है यहाँ पर, इट इज नाउ द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम. अब समझ में आ रहा है? इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं? देन द अमाउंट ऑफ दिस प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट हो गया. देखिए आप, इट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. देखिए थर्ड ईयर के लिए ये बन गया प्रिंसिपल. आई होप यू आर कनेक्टिंग. और इसी तरह से अगर फोर्थ ईयर होता तो क्या होता प्रिंसिपल, हम इस जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उसको और प्रिंसिपल को यहाँ पर ऐड कर लेते, नया अमाउंट मिलता हमें एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और वो बन जाता फोर्थ ईयर के लिए नया प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, आई होप इट इज क्लियर. Now we talk about conversion period. What is this conversion period? The time period after which the interest is added each time to form a new principal is called the conversion period. Every time, हर बार हम क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ टाइम का पहले हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फिर उससे अमाउंट निकाल रहे हैं, और उसको अमाउंट को हम नेक्स्ट प्रिंसिपल बना रहे हैं. तो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और नेक्स्ट प्रिंसिपल मिल रहा है. तो जो टाइम ड्यूरेशन है जिसके बाद एवरी टाइम वी आर रिपीटिंग दिस स्टेप, वो कहलाता है कन्वर्जन पीरियड. तो जैसे अभी हमने बात की थी कि हम 3 इयर्स का केस ले रहे थे, तो हर साल हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको मर्ज कर रहे थे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो हमारा वहाँ पर कन्वर्जन टाइम क्या हो गया था, 1 ईयर. इसी तरह से कोई 6 मंथ्स का कन्वर्जन पीरियड लेता है, कोई 3 मंथ्स का कन्वर्जन पीरियड ले सकते हैं. तो यहाँ पर अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा. इट इज़ दैट टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड इनटू द principal amount to get a new principal amount for the next unit of time. Okay, then after the specified period, the difference between the amount and the money borrowed is called the compound interest. तो अब जब हमने स्टेप वाइज बार बार फाइंड किया नया प्रिंसिपल अमाउंट, फिर नया इंटरेस्ट, फिर नया प्रिंसिपल अमाउंट, फिर नया इंटरेस्ट, तो फाइनली ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज द फाइनल अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो. द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द मनी बोरोड, जो स्टार्टिंग में मनी बोरो हुआ था, वो फाइनल अमाउंट माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल, इनको माइनस करने से आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, ये तो वो अमाउंट हुआ जो लास्ट में सारे कैलकुलेशंस के बाद हम पे कर रहे हैं, और ये वो हुआ जो हमने बोरो किया था. तो दोनों के डिफरेंस से हमें मिलेगा वो एक्स्ट्रा मनी जो हम साथ में पे कर रहे हैं, और वही तो है इंटरेस्ट. सो नाउ लेट अस डू वन एग्जाम्पल एंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. Here we have one example. A sum of 20,000 is borrowed by Hina
for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. तो दो चीज़ निकालनी है हमें, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और हमें अमाउंट भी निकालना है एट द एंड ऑफ 2 years. यहाँ पर आप देखिए 20,000 रुपीज़ बोरो हो रहे हैं, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में बोरो हो रहा है, ये हो गया आपका टाइम 2 years और ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. ठीक है, let us proceed. First we begin with this principal amount which is 20,000. So principal for the first year it is rupees 20,000 and interest for the first year. अब ये क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो प्रिंसिपल आपका है 20,000, रेट हमारा है 8% और टाइम हम ले रहे हैं फर्स्ट ईयर, तो ड्यूरेशन अपने आप में 1 year रहेगा. मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बी इक्वल टू रुपीज़ 2 8 16 एंड 2 zeros. So rupees 1,600. This is the interest for the first year. Now amount at the end of the first year. ये कैसे मिलेगा हमें? It will be principal plus this interest which is the simple interest. So we will get it as rupees how much? 20,000 plus rupees 1,600 and this will be equal to rupees 21600. ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. और अब फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है वही बन जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट. सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इट विल बी रुपीज 21,600. समझ में आ रहा है आपको? और अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए. फिर से हमारा रेट तो वही रहेगा और हम फॉर्मूला लगा रहे हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. ड्यूरेशन सेकेंड ईयर की भी 1 year ही है, सो इंटू 1 अपॉन 100. कैंसिल दीज टू, यू विल गेट इट इक्वल टू हाउ मच? रुपीज़ 8 6 48, 4 carat it will be 12, 1 carat it will be 1,728. This is the interest for the second year. Now we want to find the amount at the end of the second year. वो कैसे मिलेगा? It will be the sum of the principal amount and the interest. Rupees 21600 plus rupees 1728. दोनों को प्लस करते हैं. It will be rupees how much? 28 at the end, then 6 and 7 it's 13, 1 carat it will be 3 and 2. So 23,328. ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर बोरो किया था सिर्फ 2 years के लिए, तो यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे. अगर थर्ड ईयर भी होता तो ये बन जाता प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड. हाउ टू फाइंड इट? It will be the amount minus the principal that we borrowed in the beginning. Amount है आपका रुपीज़ 23,328 और माइनस कर देंगे हम रुपीज़ 20,000. Subtract, you will get it as 3,328 रुपीज़ 3,328. आप यही कंपाउंड इंटरेस्ट एक और तरीके से निकाल सकते हैं. देखिए आप इसको और इसको ऐड करिए, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है और जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपको यही कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो दो तरह से हम निकाल सकते हैं, या तो ये इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए या फिर जो हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं उसमें से माइनस कर दीजिए जो हमने बोरो किया था, तो उनके डिफरेंस से हमें वो एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगा जो हम पे कर रहे हैं. So I hope this example is clear to you. Now every time this long calculation is not possible, we need to have one formula for compound interest. हर बार हम ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. हमें चाहिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे फटाफट आंसर आ जाए. तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? Let us derive such formula. Let the principal for the first year, let it be P1. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान रहे हैं R.
तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये 1 डिनोट कर रहा है. सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इट विल बी P1 इंटू आर इंटू टाइम विल बी 1 ईयर अपॉन 100. तो ये हो गया P1 आर अपॉन 100. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. तो अब अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर A1 से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. ये हो गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा P1 आर अपॉन 100. ठीक है, हमने सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का है उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ वी कैन टेक दिस P1 आउट एज द कॉमन फैक्टर. टेक इट आउट. यहाँ से P1 बाहर है, उसकी जगह बैठेगा 1 बिकॉज P1 इंटू 1 विल बी P1 इफ वी ओपन द ब्रैकेट. प्लस ये P1 तो बाहर है, अंदर बैठेंगे R अपॉन 100. यहाँ से हमें मिल रहा है फर्स्ट ईयर का अमाउंट. ये देखिए. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट? वी टेक वन मोर पेज एंड देन वी विल प्रोसीड. वी विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. ठीक है, और यहाँ पर ये जो अब हमारा अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर के एंड में, यही हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट. सो दिस विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आया है यही हो जाएगा इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. इसको हमने P2 से डिनोट कर दिया है. अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. ये कैसे आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, ड्यूरेशन वही है 1 ईयर अपॉन 100. दिस विल बी इक्वल टू P2 आर अपॉन 100. यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. वो कैसे मिलेगा? अगेन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट P2 प्लस दिस P2 आर अपॉन 100. यहाँ से लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 से. अगेन वी कैन टेक दिस P2 एज द कॉमन आउटसाइड. P2 बाहर है, अंदर बचेगा 1 बिकॉज व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट it will be P2 1s are P2, then P2 is outside, inside we will have R upon 100. Getting it? ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. यहाँ पर आप देखिए ये जो P2 है इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 इंटू 1 प्लस आर बाय 100. लेट अस रिप्लेस इट हियर. तो यहाँ से A2 क्या मिल जाएगा हमें? P1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. ठीक है, और ये तो है ही साथ साथ 1 प्लस आर अपॉन 100. ये हमने P2 की जगह रख दिया. कहाँ से? इस एक्सप्रेशन से. और अब आप देखिए ये क्या आ रहा है? P1 इंटू 1 प्लस आर बाय 100. ये तो 2 टाइम्स हो गया, तो हम लगा सकते हैं पावर 2. वी कैन स्क्वायर इट एंड दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. हियर वी हैव द पावर ऑल्सो 2. ये है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और यहाँ पावर 2. दोनों में आप रिलेशन देखिए. दिस इज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और पावर भी है 2. यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं और वो क्या है? अगर हमारे पास थर्ड ईयर भी होता तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो क्या होता? इट वुड हैव बीन P1 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 3. तो जितने साल के एंड में हम अमाउंट लिख रहे हैं उतनी ही पावर लग रही है यहाँ पर. तो इनमें ये कनेक्शन है और यहीं से हमें एक और फॉर्मूला जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो मिल रहा है. लेट अस राइट इट. इट कैन बी गिवन एज अमाउंट एट द एंड ऑफ n years. This will be equal to the principal amount which is the original one into 1 plus r by 100 raised to the power n. जितने समय में हम बोरो कर रहे हैं वो यहाँ पर पावर के फॉर्म में आ जाएगा. दिस n is nothing but the time duration. Getting it? So this is the formula for compound interest and now we can finalize it. Here we have it.
When the interest is compounded annually, amount is given as principal into 1 plus r by 100 raised to the power n, and the compound interest is given as amount minus the principal. Learn these formulas. This will be used again and again, not only in your questions but also in your practical life. So just have a clear vision of this concept. यहाँ पर compounded annually का मतलब है कि हर साल जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जा रहा है. तो जो हम ये कर रहे हैं ना, बार बार इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मर्ज कर रहे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है? एनुअल ड्यूरेशन है. एक एक साल के गैप में हम ऐसा कर रहे हैं. ऐसे केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल करते हैं. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. So here we have been given the principal as ₹12,600. The rate has been given equal to 10% per annum. The time has been given equal to 2 years. Here we will be taking the symbol small n for time. Okay? Time in small n. Now we can easily find the amount. This will be given as principal into 1 plus r upon 100 raised to the power n. और principal है हमारा 12,600 into 1 plus the rate is 10. So 10 upon 100 raised to the power n. Here we have it as 2. This will be equal to 12,600 into, अब बीच में यहाँ हम LCM लेंगे. 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100. पावर रहेगी 2. दिस विल फर्दर बी इक्वल टू 12,600 into 110 upon 100 raised to power 2. Cancel this 0. We will have it as 12,600 into 11 by 10 raised to power 2. We can further solve it. Let me make some space. What we have to find? We have to find the compound interest. Okay? Yes, this will give us 12,600 into 11 by 10 into 11 by 10. It will come 2 times because the power is 2. Cancel this 0. Cancel this 0. You will have it as 126 into 11 square, it is 121, and if you now multiply you will get it as ₹15,246. This is the amount at the end of 2 years. Now we are interested in finding the compound interest. So compound interest, this is nothing but amount minus principal. Amount is ₹15,246 and the principal amount it is 12,600 in rupees. Let us now subtract. You will have 46, 12 minus 6, here we have 6, this will be 4 minus 2, 2. So this is ₹2,646. This is the compound interest and this is the amount at the end of 2 years. तो अब हमने बिना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए जो अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में की थी, एक फॉर्मूला लगाया और डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया. Now what if we have been given the time in fraction? Suppose we have been given the time as 2 years 3 months. तब हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हमें मंथ्स को भी ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा. सो वी विल राइट हियर 2 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप देखिए 12 मंथ्स, दिस इज इक्वल टू 1 ईयर. तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं. 1 मंथ कितने ईयर के इक्वल हो जाएगा? 1 मंथ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 12 ईयर्स. एंड नाउ हाउ मच? 3 मंथ्स, they will be equal to 1 upon 12 into 3, that is 3 by 12, and if we divide by 3 it will be 1 by 4 year. So how we are getting the conversion of months into year? By dividing by 12. जब हम 12 से divide कर रहे हैं तो वही टाइम जो months में है वो years में मिल रहा है हमें. So what we will do?
simply divide it by 12 and it will be converted into years. So this will be 2 and this will be 1/4 years. ठीक है, अब आप देखिए ये जो टाइम है ये फ्रैक्शन में है और ऐसे केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारा अमाउंट. तो आप देखिए अमाउंट का फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और इस बार जो हमारा टाइम है वो है 2 1/4. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए जो होल पार्ट है 2 उसको अलग कर लेंगे, ये तो 2 अलग हो गया और इस फ्रैक्शन को अलग कर लेंगे, इट विल बी 1/4. अब हम इस 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट से, इस पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो ये रेट है वो तो ईयरली रेट है और अब हम 1/4 ईयर का रेट चाहते हैं तो इसका 1/4 करना होगा. सो दिस विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2. ये तो होल पार्ट हो गया और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 इंटू R अपॉन 100 और पावर ये अब अंदर आ गई तो ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से जब भी आप देखेंगे कि एक फ्रैक्शन है टाइम तो इस फ्रैक्शन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से. ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, फिर अब आगे हम जब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ वी डिस्कस रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली सेमी एनुअली. व्हाट डज दिस मीन हाफ ईयरली? आप देखिए साल में कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, अब हम हर आधे साल में जो इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल में मर्ज कर देंगे. हाफ ईयरली का मतलब पहले जो हम क्या कर रहे थे, ईयर के एंड में इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मर्ज कर रहे थे और एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बना रहे थे अगले साल के लिए. अब हम हर हाफ ईयर में, इसका मतलब हर 6 महीने में हम नया इंटरेस्ट जो है वो हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे और एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाएंगे अगले 6 महीने के लिए. तो आप देखिए अगर हम 6 महीने लें, अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो ये हो गए फर्स्ट 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे और अगले 6 मंथ्स के लिए हम नया प्रिंसिपल अमाउंट लाएंगे. तो अब फिर से जब ये 6 मंथ्स खत्म होंगे तो दोबारा हम नया इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और प्रिंसिपल में ऐड करते हुए अगले 6 मंथ्स के लिए नया प्रिंसिपल लाएंगे. तो आप क्या देख रहे हो कि एक साल में अब 2 बार कैलकुलेशन हो रहा है. तो यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन पीरियड है वो डबल हो गया है. Let us see what has been written. When the interest is compounded half yearly, there are 2 conversion periods in a year, each after 6 months. तो अब हम साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसको मर्ज कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट में ताकि हमें अगले 6 मंथ्स के लिए एक नया प्रिंसिपल अमाउंट मिल सके. And in such situations, the half yearly rate will be half of the annual rate. जो हमारा एनुअल रेट था, जैसे फर्स्ट केस में हमारा एनुअल रेट था 20%, अब वो हाफ ईयरली के केस में कितना रह जाएगा? इसका हाफ 10% रह जाएगा. देखिए रेट विल बी हाफ ऑफ द एनुअल रेट एंड पर हाफ ईयर. तो पहले जो पूरे साल के लिए 20% रेट लग रहा था अब वो फर्स्ट हाफ के लिए 10% लगेगा और सेकेंड हाफ के लिए भी 10% लगेगा. और ऐसे केस में टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2.5 ईयर्स. एक साल में 2 हाफ ईयर्स मिल रहे हैं हमें, ऐसे ही 2 ईयर्स में हमें कितने हाफ ईयर्स मिलेंगे? 2 into 2 दैट इज 4 हाफ ईयर्स मिलेंगे. और अगर हमारा टाइम है n ईयर्स तो n ईयर्स में कितने हाफ ईयर हो गए? डबल हो जाएंगे, 2.5 ईयर्स. आगे क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट है तो. नेक्स्ट, रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार. और अब साल में 4 बार का मतलब क्या हो गया? 3 मंथ्स पे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर. तो अब पहले 3 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट में मर्ज कर देंगे, फिर नया प्रिंसिपल मिलेगा, उसके लिए फिर हम अगले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर से हम उसको ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, जिससे हमें अगले 3 मंथ्स के लिए नया प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और ऐसे हम करते जाएंगे. तो यहाँ हम साल में कितनी बार
कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, आप देखिए 4 टाइम्स, देयर आर 4 क्वार्टर्स, 3 मंथ्स के ड्यूरेशन को हम कह रहे हैं क्वार्टर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो अब जो रेट 20% था, हाफ ईयरली के केस में हाफ हाफ हो रहा था, क्वार्टरली केस में हम 4 से डिवाइड करेंगे और ऐसे केस में 5% हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर के लिए, 5% सेकेंड क्वार्टर के लिए, 5% थर्ड क्वार्टर के लिए और 5% फोर्थ क्वार्टर के लिए। और अब साल में कितनी बार हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, आप देखिए 4 टाइम्स। कन्वर्जन पीरियड हमारा 4 टाइम्स हो गया। जहां हम पहले साल में एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम 4 बार कर रहे हैं, तो हमारा 4 टाइम्स हो गया कन्वर्जन पीरियड। और यही यहाँ पर लिखा है कि रेट तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स। सो 4n क्वार्टर्स, एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं तो n ईयर्स में 4 इंटू n क्वार्टर्स हो जाएंगे। ये 3 मंथ्स का जो स्पैन है ये एक क्वार्टर कहलाता है, ठीक है। So here we have, in this case there are 4 conversion periods in a year and the quarterly rate will be 1/4 of the annual rate. Again, we will be understanding much better with the help of examples, and let us take one example. This is example 12. What amount is to be repaid on a loan of rupees 12,000 for 1.5 years at 10% per annum, compounded half yearly? So now we have one example. Principal amount, it is rupees 12,000. Then rate is given as 10% per annum. इसका मतलब पूरे साल के लिए तो रेट है 10%, लेकिन हमारा यहाँ पर केस हो रहा है हाफ ईयरली कंप्यूटेशन का, और ऐसे केस में हम रेट को क्या कर देंगे, बिल्कुल वी विल बी गेटिंग इट्स हाफ, और ये हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर। ये साथ में लिखना ज़रूरी है, ये तो है पर एनम यानी पर ईयर, और ये हो गया पर हाफ ईयर। तो यहाँ पर ये हाफ ईयर ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा 10% इक्वल टू 5%, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, साथ में ये भी ज़रूर लिखिएगा। देन टाइम इज n and now here it will be how much? Just have a look, it's 1.5 years. And if we just solve it, 2 1s are 2 plus 1, it will be 3/2 years. और अब हम टाइम को क्या कर देते हैं, डबल, तो 3/2 का डबल करेंगे आप, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स. फोकस ऑन हाफ ईयर्स, इनको ज़रूर लिखना है. आई एम अंडरलाइनिंग इट सो दैट यू डेफिनेटली राइट दिस इन योर आंसर्स. ये ज़रूर लिखने हैं. तो 3 हाफ ईयर्स हो गए. अब हम इजीली फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करते हैं. What we have to find? We have to find the amount. Just have a look. We have to find this amount. Now, amount will be given as principal into 1 plus r upon 100 raised to power n. Principal amount is 12,000. 1 plus r, अब हम क्या लेंगे, 5% लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, और पावर आपकी हो जाएगी अब 3 हाफ ईयर्स, ये वाली, समझ रहे हैं ना आप. और अब ये हो गया 12,000 इंटू, अंदर हम इनको सॉल्व करते हैं, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 5 अपॉन 100 एंड द पावर इज 3. दिस विल बी इक्वल टू 12,000 इंटू 105 upon 100 raised to power 3. Now we can expand it. 12,000 into 105 upon 100, 105 upon 100 into 105 upon 100. इसको हम 3 times लिखेंगे क्योंकि पावर हमारी है 3. Now we can cancel these 2 zeros from here, cancel this single zero from here. Now further we can divide by 5. 5 2s are 10 and 0. Here we have 21 on dividing by 5. Again we can divide by 5. 5 4s are 20 and here we will have 21. Now this 4 can divide this 12. 4 1s are, and here we will have 3 times. Here we can have a look. It's 3 into 21 into 21. It's 441.
into 105. ठीक है, and in the denominator we have nothing. Now we need to simply multiply these three. Let us multiply. This will be 5 3s are 15 and 1 carrot, it will be 15, 3 1s are 3. So 315 हो जाएगा. 3 और 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही हम मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको 441 से. 5 1s are 5, 5 4s are 20, 2 carried, it will be 22. Then 441 on multiplying by 1. Here we have 3 1s are 3, 12, and here we have 13. 5, 1, 4 and 3, 7, 8, 9, 4 and 4, it's 8 and 13. So this is equal to rupees 1,38,915. This is the amount and this has been calculated half yearly. I hope it is clear. तो अब आप समझ गए, easy है. बस important क्या है हाफ ईयरली के केस में, रेट को हाफ करना है और टाइम को डबल करना है और साथ ही साथ यहाँ पर हाफ ईयर को ज़रूर मेंशन करना है. रिमेंबर दिस. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट paid when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually. तो यहाँ पर हम रेट को ना तो हाफ करेंगे ना टाइम को डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटेशन हो रहा है एनुअली, यानी साल के एंड में ही हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में मर्ज कर रहे हैं. वी बिगिन बाय द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज रुपीज 10,000. Then we have the rate of interest, it is 8.5% per annum. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 2 8s are 16 plus 1, it will be 17/2% per annum पूरे साल के लिए. टाइम, दिस इज 1 year 3 months. अभी हमने डिस्कस किया था कि मंथ्स को कैसे हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं. वी डिवाइड इट बाय 12, so it will be 3/12 years and this will be equal to 1/4 years. ठीक है, 3/12 it will be 1/4. तो ये हो गया 1/4 years. इसका मतलब एक साल तो पूरा पूरा लेना है और नेक्स्ट ईयर हमें 1/4 ही लेना है. ठीक है. नाउ वी फाइंड द अमाउंट. लेट मी टेक अ न्यू पेज. Amount, it is given as principal into 1 plus r by 100 raised to power n. Amount, this will be given as 10,000, which is the principal here. 1 plus rate is this time 17/2 and now we will have 2 into 100 in the denominator and the power is 1/4. देखिए आप, यहाँ पर 17/2 है हमारा रेट और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में 100 के साथ. दिस विल बी 10,000. हियर वी हैव 1 plus 17 upon 200 raised to power 1/4. We can simplify it. 10,000 into 1 plus 17 upon 200 raised to power 1 हम अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे. 17 upon 200 इन पावर 1/4. फ्रैक्शन को सेपरेट कर दिया और होल पार्ट को सेपरेट कर दिया. दिस विल गिव अस 10,000 इंटू, ये हो जाएगा 200 इंटू 1, 200 प्लस 17, 217 अपॉन 200 हो जाएगा ये, इंटू. अब ये जो फ्रैक्शन है ये कहाँ जाएगा? इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस रेट. 1/4 इंटू 17 अपॉन 200. देखिए आप, हमने क्या किया, इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया रेट से और अब ये 4 भी नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. दिस विल बी 10,000 इंटू 217 अपॉन 200 इंटू 1 प्लस 17 अपॉन 800 हो जाएगा. ये अब 4 भी 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस विल गिव अस 10,000 into 217 upon 200 into 800 1s are 800 plus 17, it will be 817 upon 800. Now cancel these two zeros and cancel these two zeros. We will have it as 217 into
817 upon 2 8s are 16. Now we need to multiply 217 and 817. If you multiply, you will get it as 177,289 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 16. We now need to divide this number. 177,289 divided by 16. It will go one time, 17. Again one time, 12. Now 12 is a smaller number. तो हम लेंगे यहाँ पर 0 और इस 8 को भी कॉपी कर देंगे. 16 8s are 128. Here we have 0 और यहाँ से लेंगे हम 9. अभी 9 का डिवीजन नहीं हुआ है तो 9 यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है. पहले हमें इस 9 को भी डिवाइड करना होगा. उसके लिए हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्योंकि 9 एक छोटा नंबर है. अब 9 है रिमाइंडर और यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल 0, 16 और यहाँ है 90. इट विल गो 5 टाइम्स. 16 5s are 80, 10 एक 0 और लिया, 16 6s are 96, 4 and 0. It will go how many times? 2 times. 16 2s are 32. तो डेसिमल के बाद हम 3 प्लेसेस तक आंसर निकालेंगे. लेट मी जस्ट डिमार्केट इट. यस, ठीक है. डेसिमल के बाद हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालेंगे और थर्ड डेसिमल प्लेस को हटाकर राउंड ऑफ कर देंगे. देखिए ये 5 से छोटी है तो इसका मतलब ये अपने आप रिमूव हो जाएगी और इस सेकेंड प्लेस पर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है. दिस विल बी इक्वल टू ₹11080.56. ये हो गया आपका अमाउंट आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है. एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? जस्ट रिकॉल टिल आई मेक सम स्पेस. यस, कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन एज amount minus the principal and the amount is ₹11080.56 and the principal is ₹10,000. Subtract the two, you will get it as ₹1080.56. This is the required compound interest. I hope it's clear. Now where is this compound interest used? In other fields also is it used? Or is it applicable only for compound interest? You will see that this formula has its own applications. Applications of compound interest formula. It is used in these situations also. In finding the increase or decrease in population, यही formula use करते हैं हम. In finding the growth of a bacteria, if the rate of growth is known. Bacteria भी बहुत जल्दी जल्दी multiply होता है, उसकी growth बहुत जल्दी होती है और ऐसे केस में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. हम क्वेश्चंस करेंगे आने वाली एक्सरसाइज में और फिर आप देखेंगे ये कैसे होता है. द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द इंटरमीडिएट ईयर्स. तो अलग अलग आइटम्स के जो प्राइस हैं वो भी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो उनको भी हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सब क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे. वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 14 फ्रॉम योर बुक. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of the year 2000. तो अब आप देखिए कि 1997 ईयर में जो पॉपुलेशन थी वो थी 20,000 एक सिटी की. फिर हर साल 5% के रेट पर ये इंक्रीज़ हो रही है. तो हर साल जो एक साल में इंक्रीज़ हुई उसी से हम आगे 5% निकालेंगे. फिर जो सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ हुई उसी से हम नेक्स्ट ईयर के लिए काउंट करेंगे. तो हर बार जो इंक्रीज़ हो रहा है वो एडअप हो रहा है ओरिजिनल पॉपुलेशन पे. तो ये एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही और वही फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. वी हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000. वी बिगिन पॉपुलेशन इन द ईयर 1997. इट इज़ 20,000. नाउ रेट ऑफ इंक्रीज इट इज़ 5% पर एनम. अब हमें फाइंड आउट करनी है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000. दिस इज द ईयर. तो अब कितना टाइम हो गया ये देखिए 1997 से लेकर 2000 तक कितना टाइम स्पैन हो गया 3 ईयर्स का. तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया एक्चुअली 3 ईयर्स. ये तो सिर्फ ईयर्स दिए हैं जिनसे हमें एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन निकालनी है और वो है 3 ईयर्स. सो वी फाइंड हियर population at the end of year 2000. It is population after 3 years and this will be
given as the initial population, which is 20,000. It is there, into 1 plus the rate, which is 5 upon 100 raised to the power 3. इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. देख रहे हैं आप, तो यहाँ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ही यूज़ किया है. दिस इज इक्वल टू नाउ 20,000. अब यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 इंटू 1, इट विल बी 100 प्लस 5, ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 और पावर है 3, तो 3 बार ही हम इसको लिख लेते हैं into 105 upon 100. Now these two zeros will be cancelled, these two zeros will be cancelled. Then we can divide this 2 and here 50. Now we have again division by 5 is possible. 5 tens are 21 times, again by 5 21 times, and here we have 2. 5 2s are 10. क्या बच गया देखिए आप, 21 into 21 it is 441 into 105 upon 2. तो मल्टीप्लाई करते हैं, 441 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 105 से. 5 ones are 5, 22 carried, it will be 22. Then we have 0 in between, it will be 441. 5, 0, 3, 6 and 4. It will be 46,305 upon 2. Let us divide by 2. 2 2s are, 3s are, 1 time, 5 time, 2 times and 0.5. Now this is in decimal and the population, it is the population, it cannot be in decimal. So we will write an estimated population. We will be estimating it to the nearest number, which is 23153. So estimated population in the year 2000 at the end of year. At the end of year 2000, the population will be 23,153. Okay, so this was your example. Next we have example 15. A TV was bought at a price of rupees 21,000. After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. कम हो गई टीवी की वैल्यू. क्यों कम हो गई? Obviously depreciation means reduction of value due to use and age of the item. जैसे जैसे item use होता है, उसकी age होती है, उसकी value decrease हो जाती है. और यहाँ पर टीवी की जो प्राइस था वो 21,000 था और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 5%. फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर. अब हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट वे इज़ कि हम इसका 5% निकाल लें, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 5% निकाल लें और फिर उसको माइनस कर दें. डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस करेंगे ओरिजिनल वैल्यू और उसमें से माइनस कर देंगे डिक्रीज़. लेकिन यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला और उससे फाइंड आउट करते हैं. What will be the value of TV after 1 year? It will be the original price, that is 21,000 into 1 plus R by 100 होता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज, तो हम लगाएंगे -5 by 100 और पावर है टाइम की और वो है 1. So this will be here. This is again 21,000 into, now this will be 100 ones are 100 minus 5 upon 100. This is 21,000 into, this will be 95 upon 100. These two zeros will be cancelled. Now 95 into 21. Let us do it. It will be 95. Here we have 2 5s are 10 and 1. It will be 19. It's 1995. And we have this 0 also. So now the price of the TV after 1 year, it will be 19,950. तो depreciation हो गया है. तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व किया है. So this was the topic of compound interest. I hope you found it interesting and useful. In our next class, we will be doing exercise 8.3 based on compound interest. Okay then, goodbye.